Let's start our session for the day. So my name is Shehzad. I represent Association of Muslim Professionals. Along with me on the panel, I have Mr. Baris Sardar, who is head of Career Counseling Cell. I have our president, Mr. Amir Idrisi Sir. I also have Ms. Asma Firdos. She is the head of School Development Program. And speaker of the day, Mr. Jawad Qazi. He is a center head and senior faculty at the Unique Academy, Pune. So today's session is about career in civil services. So we'll start this session with a short kirat, and then I will ask Ms. Asma Firdos to kindly host this session. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Thank you, everyone. So I request Ms. Asma Firdos to kindly host this session from here on. Thank you so much. Assalamu alaikum and a warm welcome to all. I would like to introduce you to AMP. What is AMP all about? What are its achievements, its mission and vision? So AMP is the abbreviation that represents the Association of Muslim Professionals. AMP is registered in India, USA, UK and Australia as a non-profit organization. It has completed its 12 years serving our community in the field of education, employment and empowerment. AMP has a vision to positively impact the lives of 10 million people by 2030. AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision is to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. The achievements of AMP. AMP through its school development programs has connected to around 800 plus schools and conducted 2,750 plus skill development lectures, from which around 2,75,000 students have benefited. AMP has also conducted around 100 plus teachers training and parenting workshops. AMP through its employment assistance cell has conducted around 350 plus job fairs and job drives, benefiting 20,000 students who became employed. It has also conducted around 200 plus employability training programs, which has benefited around 15,000 degree students. Coming to the scholarships and self-employment schemes by the AMP. AMP has funded around 800 plus scholarships for higher education and 750 plus orphans to continue their basic education. It has also transformed around 250 families by offering self-employment assistance. The AMP Resource Center. It contains around 600 plus career counselors who have counseled around 2,000 plus students. It has also distributed around 1,000 plus career charts to the students. AMP, the Association of Muslim Professionals, has connected around 280 plus renowned educationists and awarded them. It has also partnered with 30 plus organizations for conducting skill training and job fairs, including the state governments. It has partnered with 50 plus NGOs for various programs. AMP has an on-ground presence in more than 100 plus active chapters, which are spread across 25 states with 16 countries, with a total of around 6,000 plus active members. It has also an online presence of 1,25,000 individuals as members and professionals which are connected.
We can see the presence of AMP on the various social media also. So this is regarding AMP. Over to Shehzad. To join AMP, please visit www.ampindia.org.joinamp. We would be very pleased to have you on board. And like this is an opportunity for you to serve the community. Thank you. Thank you so much, Asma ma'am. So Thank I would like Mr. Jawad Qazi to take over the session from here on. To all the participants who are here, we would just like to request you all, if you have any questions relating to the topic, please do not hesitate to raise your questions in Q&A. Topic specific to the session today will be covered at the end of the session. We'll keep specifically 15 to 20 minutes only for Q&A sessions. So any questions, kindly raise it in Q&A section. Thank you. Mr. Jawad Qazi, I request you to please take over the session. Thank you. Thank you very much. Janab Amir Idrisi Sahab, President, Association of Muslim Professionals, जनाब शहजाद मुकादम, बाजिर सरदार और आसमा फिरदौस मैडम, और इस वेबिनार में आज हमारे साथ में जुड़े सभी नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आज इस वेबिनार में जो मुल्क और मुल्क के बाहर से जो नाजरीन जुड़े हैं, मैं इन सभी का आज के इस मौजू पर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम और करियर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसमें आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज का ये सेशन मैं शुरू करूं इससे पहले मैं आमिर इदरीसी साहब और उनकी पूरी टीम, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की तमाम टीम को बेइंतहा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसी कामयाब और वक्त की जरूरत जिन चीजों की है, ऐसे टॉपिक्स की वेबिनार सीरीज आपने मुनाकिद की है, जिससे कई हजार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स फायदा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज का ये वेबिनार हमने प्लान किया है सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से। मेरे सभी नौजवान भाई बहनों से खास तौर पे यहाँ खिताब करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आपकी जिंदगी के एक बहुत ही अहम मुकाम पर खड़े हैं। यहां पर जो फैसले आप लेंगे, the decisions that you will make at this point of time are going to have a great bearing on the rest of your career. इस मौके पर जो आप फैसले करेंगे वो आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी डिसाइड करेगा। एंड नॉट जस्ट योरसेल्फ, सिर्फ आप तक ही नहीं, बल्कि आप, आपकी फैमिली, पूरा समाज, मुल्क और मिल्लत, इन सभी को आप आपके करियर्स के जरिए से इंपैक्ट कर सकते हैं। जिस किस्म के सब्र आजमा दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे हम सब वाकिफ हैं, और ऐसे दौर में ये लाजमी है कि हम हमारे जो नौजवान जो अभी करियर्स बना रहे हैं, जो अभी तालीम ले रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट पर खास तवज्जो दें। खास तौर पे इस प्लेटफॉर्म से मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप ऐसे करियर्स की तरफ तवज्जो दें जो आपको स्टेट की मशीनरी का पार्ट बनाते हैं। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या इससे नीचे की और दीगर दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनके जरिए से आप स्टेट की मशीनरी का पार्ट बन सकते हैं। एक वेलफेयर स्टेट की ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होना आपके लिए बहुत सारे मौके खोल देता है, जहां पर आप मुल्क और मिल्लत की फलाह के लिए अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट को आप सर्व कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही समाज के लिए बहुत अच्छे रहनुमा के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी ऐसे करियर्स जो आपको स्टेट के साथ में एसोसिएट होने का मौका देते हैं, ऐसे करियर्स की तरफ रुझान रखने की आज के दौर में खास तौर पर जरूरत है। और इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म से कुछ मेरा तजुर्बा इस सिलसिले में, इस एग्जाम खास तौर पे यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम, इस सिलसिले में मैं यहां आपके सामने रखने जा रहा हूं। जस्ट अलाउ मी अ ब्रीफ मोमेंट टू शेयर माय पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों,
सिविल सर्विसेज एग्जाम ये यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली एक एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हर साल मुनाकिद होने वाली ये मुकाबला जाती एग्जाम भारत सरकार की तमाम बड़ी सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए ली जाती है। इस एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसका प्रोसेस, नेचर, तैयारी और इसके अलग अलग करियर्स, इसके ताल्लुक से आज इस वेबिनार में मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूं इससे पहले ये स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं उन कामयाब नौजवानों की तस्वीरों वाली जिनको आपने आइडलाइज करना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ज़ैनब सईद की तस्वीर, जिन्होंने कुछ साल पहले, 3 साल पहले आज से, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम को टॉप किया था। सिर्फ टॉप ही नहीं किया इस एग्जाम में, बल्कि यूपीएससी के इंटरव्यू में अब तक के हाईएस्ट नंबर ज़ैनब सईद ने स्कोर किए। और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, वो एक किस्म का हिजाब पहने हुए हैं। इसी किस्म का हिजाब पहनकर बाकायदा इंटरव्यू ज़ैनब सईद ने दिया और उस इंटरव्यू में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उस साल ही नहीं बल्कि उससे पहले और अब तक सबसे हाईएस्ट नंबर्स जो इंटरव्यू में दिए गए हैं, उसका रिकॉर्ड ज़ैनब सईद के नाम है। मैं खास तौर पे इस बात को हाईलाइट करके आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह है कि मैं खास तौर पर बच्चियों को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप भी किसी से कमतर नहीं हैं। अगर आप भी चाहें तो ज़ैनब सईद और दूसरी और कई बच्चियों की तरह आप भी सिविल सर्विसेज में करियर बना सकती हैं। अपने फैमिली के लिए, खानदान के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए आप भी फख्र का बाइस बन सकती हैं। ये पहली वजह है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन या वजह यह है कि हमारे जहन में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों से, कुछ डेकेड से हमको ये कहा गया है कि आपके खिलाफ में ये होता है, वो होता है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये सारी चीजें गलत हैं। मैंने खुद कई मुकाबला जाती इम्तिहानों को दिया है, उसमें बहुत अच्छा सक्सेस भी मुझे मिला है। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई पार्शियलिटी या कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एग्जाम में किया जाता हो। और ज़ैनब सईद इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। तो इस चीज को, इस शिकस्त खुर्दा ज़हनियत को, डिफीटिस्ट मेंटालिटी को हमको हमारे जहन में से निकालना है। अगर आपके पास में मेरिट है, अगर आपके पास में टैलेंट है, तो कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शाफिन हसन की। शाफिन हसन गुजरात के एक छोटे से शहर से आते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मॉडेस्ट किस्म के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जाम को टॉप किया और भारत के इतिहास में यंगेस्ट इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर के तौर पर वो सिलेक्ट हुए। इट इज अ foregone conclusion, friends, that this boy whose picture you are seeing on the screen will rise to the position of DGP of a state. He has cracked this exam at the age of 22. He has sufficient career before him to rise up to the rank of DGP of his home state of Gujarat. नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकी कहानी तो मैं आपको क्या बताऊं। उम्मुल खैर नाम की ये बच्ची राजस्थान के एक छोटे से स्लम एरिया से बिलोंग करती है। पूरा एजुकेशन खुद सेल्फ सपोर्ट करके कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी खुद से की और जेएनयू से ये अभी अपनी पीएचडी जो है कंप्लीट कर चुकी है और साथ ही सिविल सर्विसेज की टॉपर भी है। एक बीमारी के चलते इनकी बोन्स जो है, बॉडी की बोन्स ब्रिटल है। अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो बोन्स क्रैक हो सकती है। ऐसी हालात में घर से दूर खुद को सपोर्ट करते हुए यूपीएससी की एग्जाम को इन्होंने भी टॉप किया है और आईएएस इस मकाम पर, इस पोजीशन पर आज वो फाइज हैं। इनकी करियर या इनकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद मुझे गालिब का वो शेर याद आता है। गालिब लिखता है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। अगर तकलीफें, मुश्किल, परेशानियां इससे अगर आप आदी हो जाए तो ये खत्म हो जाती हैं। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज,
मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अगली तस्वीर अंसार शेख की है। अंसार शेख भी इसी तरीके से जालना जिले के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 22, अंसार शेख ने यूपीएससी की एग्जाम को क्रैक किया, टॉप किया और आज वेस्ट बंगाल में मालदा जिले में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे हैं। एसडीएम ये 7 to 8 तालुकास ऑलमोस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस की पोजीशन होती है। इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े मकाम पर at the age of 24 this boy is working. All of these young boys and girls are contributing in taking the nation forward, and they are beacons of hope and example for other students like you. ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, ये हमारे आइडॉल्स हैं जिनके नक्शे पाव पर चलकर आपको भी इसी किस्म की सक्सेस इन मुकाबला जाती इम्तिहानों में हासिल करनी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपको लाइफ में, जो आगे ले जाती है, वो है आपकी जिंदगी का मकसद। इम्तिहान, करियर, तैयारियां कैसे की जाए, इन सब चीजों पे तो गुफ्तगू होगी ही, लेकिन सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज जो आपको आपके जहन में रखना है वो है मकसद। जब आपका मकसद साफ होता है, वाज़ेह होता है, आपके सामने होता है, तो फिर सारी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ, चैलेंजेस ये छोटी हो जाती है, बौनी हो जाती है। इसीलिए एक फिलोसोफर ने कहा है, आई बिलीव आई एम हियर फॉर अ रीजन एंड माई पर्पस इज ग्रेटर देन माई चैलेंजेस। अंसार शेख ने हमारे यहां पर ही पुणे में तैयारी की। पर्सनली मैं उनका स्ट्रगल मैंने देखा है। फर्ग्यूसन कॉलेज में पुणे के पढ़ाई करते हुए he had just 2 shirts to wear. One was in the wash and one was on his body. और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसा कॉलेज जो कि बहुत ही हैपनिंग कॉलेज है पुणे का, वहां पर ये बच्चा जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। लेकिन किसी भी माली हालात ने जो है इस बच्चे को टस से मस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस, उसका मकसद, उसका विजन उसके सामने था, ठीक है। जब आपकी जिंदगी में पर्पस होता है तो ये आपकी जिंदगी में एक इंजन की तरह काम करता है। यही वो इंजन है जो आपको जिंदगी में आगे से आगे गामजन रखता है। ये आपको सभी मुश्किल और सभी चैलेंजेस को डील करने की ताकत देता है। इसलिए ये जरूरी है दोस्तों कि आप आपके जिंदगी का मकसद, या जिसको अरबिक में कहते हैं नस्बुल ऐन, अरबिक का बड़ा खूबसूरत वर्ड है नस्बुल ऐन, ऐसी चीज जो हमारे इन दो नजरों के सामने होती है, दैट इज नस्बुल ऐन। मतलब हमारा पर्पस, हमारा टारगेट, हमारा हदफ। जब ये टारगेट पर्पस आपके सामने होता है तो फिर कोई भी और मुश्किल, परेशानी, तकलीफ आपको डिटर नहीं करती, ठीक है। और जब आप साबित कदम होते हैं तो फिर बहुत सारी मददें आपके साथ में शामिल हो जाती हैं। एएमपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काबिल बच्चों को हेल्प करना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन कोई तो हो जो उस किस्म की फायर, पैशन, ड्रीम, डिजायर रखता हो, तभी उनको हेल्प किया जा सकता है। इसलिए फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज हैविंग योर पर्पस सेट बिफोर यू। पर्पस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपका मकसद या आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं दैट लो एम इज अ क्राइम, ठीक है। आपका मकसद या आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए। बड़ा यानी आपसे बियॉन्ड, सिर्फ मैं, मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली, मेरा करियर, इस तक आपका पर्पस लिमिटेड या महदूद ना हो। आपका पर्पस आपके बियॉन्ड होना चाहिए। तमाम समाज के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए आपको काम करना है। एएमपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल भी आपके सामने है। आमिर इदरीसी साहब और उनके बाकी साथी समाज के लिए, मुल्क और मिल्लत की फलाह के लिए अपने करियर्स के साथ साथ में उसके बियॉन्ड जाकर के सारे ये काम कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ बिगर पर्पस इन लाइफ, ठीक। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको कुछ कॉमन मिथ्स इस एग्जाम की जो है इनसे आगाह कराता हूं। इस एग्जाम के सिलसिले में हमारे जहन में बहुत सारी गलत सलत बातें जो है वो डाल दी गई है। इनका जहन में से निकाल देना ये जरूरी है
because unless the cup is empty we cannot fill it. तो नई चीज डालने से पहले पुरानी चीज को निकालना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं आप जहन में रखें वो ये है कि इस एग्जाम के लिए एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। एक बहुत बड़ा मिथ या मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स ऐसी एग्जाम्स में सक्सेसफुल होते हैं जो पहले से बोर्ड रैंकर्स रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जहानत रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट में कहीं पर भी आपके पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस का रेफरेंस, उसका जिक्र नहीं आता। ठीक है, आप किस तरीके से प्रोफेशनली इस एग्जाम की तैयारी करते हैं वही आपके सक्सेस को डिटरमाइन करता है। इसलिए आप आपके जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि अगर आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन के नंबर अच्छे नहीं रहे हैं तो आप इन एग्जाम्स में सक्सेस नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारी मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं जहां हमने देखा है कि कैंडिडेट्स जो बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो भी इन एग्जाम्स में एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करते हैं। सेकंड, ओनली कॉन्वेंट एजुकेटेड और इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड स्टूडेंट्स कैन क्लियर दिस एग्जाम। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप किस किस्म के या किस मीडियम से आपने आपकी तालीम ली है, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है, मराठी है या किसी भी और बैकग्राउंड से आपने एजुकेशन लिया है, उसका आपके सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। ये इम्तिहान, डिस्क्रिप्टिव पार्ट और इंटरव्यू वाला पार्ट आप हिंदुस्तान के आईन में दिए गए 22 जबानों में से किसी भी जबान में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उर्दू, मराठी, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश के अलावा, इसमें आप इस पूरे एग्जाम को आप दे सकते हैं। बाकायदा इंटरव्यू के वक्त भी अगर आप चाहें तो आप मराठी या किसी और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मीडियम एज सच आपके सक्सेस के अंदर में बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। इसके बाद अगला मिथ है फैमिली बैकग्राउंड का। यह भी बड़ा जहन में लोगों के होता है कि अगर आप बहुत एलीट किस्म की फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ही आपके लिए एग्जाम्स क्लियर करना आसान होता है। यह भी सरासर गलत है। आपके अंदर फायर कितना है वो मैटर करता है। ठीक है, एक पुरानी इंग्लिश की कहावत है, इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग दैट मैटर्स इन द फाइट, इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग दैट मैटर्स इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग दैट मैटर्स। आपके अंदर में वो जज्बा, वो जुनून, अपने मकसद को अचीव करने का, ये किस हद तक आपके अंदर में वो भरा हुआ है वो मैटर करेगा रादर देन कोई और सोशल बैकग्राउंड। इसके बाद एक अगला बड़ा ही कॉमन मिथ है कि इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको 17-18 घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम ट्रूथ देन दिस। रोज अगर कोई 17-18 घंटे पढ़ाई कर सके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। ठीक है, 17-18 आवर्स अ डे consistently over a period of time is humanly not possible. ठीक है, rather than that quality of your study matters. 9, 10, 11 hours of quality study is more important than just increasing the number of hours. Always in life quality को precedence होता है quantity के ऊपर में, और यही चीज हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी बताती है। 313 1000 पर गालिब हो गए थे बदर में क्योंकि क्वालिटी थी। क्वालिटी मैटर्स रादर देन क्वांटिटी। ओनली पर्टिकुलर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स फाइंड इट इजी टू क्लियर दिस एग्जाम। दिस इज अनदर मिथ कि आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ही क्लियर करते हैं या किसी और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही क्लियर करते हैं। यह भी एक बड़ा मिथ है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को बड़ी इजीली क्लियर कर सकते हैं provided you take the right kind of efforts for that. And lastly, English proficiency. What level of English proficiency you have is again totally unrelated with success in these exams. जैसा मैंने आपको कहा कि आप बाकायदा हिंदी, उर्दू या किसी और मीडियम में भी इस इम्तिहान को दे सकते हैं। इस वजह से आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी ये मैटर नहीं करती। एक बेसिक एजुकेटेड इंसान के तौर पर जितनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए
उतनी भी अगर आपके पास है तो वो इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ताकि आप बेसिक स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकें। उसके बियॉन्ड एक्सेप्शनल कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। तो दोस्तों ये थी कुछ मिथ्स जो कि मैं चाह रहा था कि शुरुआत में ही आपके जहन से मैं निकाल दूं ताकि हम फिर आगे एग्जाम और इसके बारे में डिटेल में बात कर सकें। अब मैं थोड़ा सा आपको सिविल सर्विसेज का एग्जैक्ट रोल कहां और कैसे होता है इसको समझाता हूं ताकि आप इस एग्जाम के नेचर को ज्यादा बेहतर तरीके से आप अप्रिशिएट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा मुल्क भारत, इसकी जो पॉलिटी है, मतलब इसका जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इसके 3 इंपॉर्टेंट विंग्स हैं। पहला विंग है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी यानी अदालत, लेजिस्लेचर है हमारा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव में भी 2 पार्ट्स आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिलकर के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भारत का बनाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोस्तों हर 5 साल में लाजमी तौर पर चेंज होता है। कभी कभी उससे पहले भी अगर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में आ जाए तो उससे पहले भी ये चेंज हो सकता है। लेकिन देश जो है वो चलता रहता है, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन देश रुकता नहीं है। इलेक्शंस आ जाए, इमरजेंसी भी हमने देखी है, वॉर हो जाए, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, देश को आगे से आगे गामजन रखने का जो काम है वो हमारे देश की परमानेंट एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस। ठीक, इसका रोल हमारे देश को कायम रखने के लिए, उसको आगे की तरफ गामजन रखने के लिए, प्रोग्रेस की तरफ, आगे डेवलपमेंट की तरफ गामजन रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर देश खड़ा है। ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इस फ्रेज से ही आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर देश की फलाह और बहबूद में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इस स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में जो ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे ये भारत के बेस्ट माइंड्स होने चाहिए। ठीक है, मैंने कॉन्शियस चॉइस ऑफ वर्ड्स किया है दोस्तों यहां, वी वांट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, मैंने कॉन्शियसली बेस्ट ब्रेन्स ये वर्ड यूज नहीं किया। rather than IQ, okay, intelligence quotient, a very different kind of personality is required over here, and that is tested on the basis of the kind of mind that the candidate has. Okay? इसीलिए हर साल मेरिट के बेसिस पर एक एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए से इस सर्विस का रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेशनल लेवल की सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी नाम की बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किरदार निभाती है और हर स्टेट की सर्विस के लिए अलग से उस स्टेट की सर्विस वो काम करती है। जैसे महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इस सिलसिले में काम करती है। हर एक स्टेट की अपनी ऐसी इंडिविजुअल बॉडी है। तो इस स्लाइड में दोस्तों मैंने आपको एक बैकग्राउंडर देने की कोशिश की कि एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज का रोल क्या होता है। अब हम समझते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यूपीएससी। यूपीएससी दोस्तों हमारे देश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब हमारा मुल्क आजाद होने की कगार पर था, उस वक्त में हमारा आईन बनाने के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट्स हुई और इन डिबेट्स के आखिर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आईन तैयार हुआ। और इस आईन में हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम की एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन में
बनाई गई इस बॉडी का काम है कि ये भारत सरकार के गैजेटेड ग्रुप ए और बी कैटेगरी के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करें। ग्रुप ए और बी ये टॉप रंग ऑफ ऑफिसर्स हैं भारत सरकार के, और इनका चयन, इनका सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट करने का काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपा गया, जिसकी बुनियाद कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखी गई है। ठीक है, ये बॉडी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल अलग अलग किस्म के इम्तिहान लेती है, और इन मुकाबला जाती इम्तिहानों के जरिए से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए से ये भारत सरकार के ऑफिसर्स का सिलेक्शन करती है। इन एग्जाम्स में सिविल सर्विसेज एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस और भी बहुत सारी भारत सरकार की सर्विसेज रिलेटेड एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस बॉडी को वॉचडॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े रह करके यूपीएससी पर जब डिबेट की थी, तो उस वक्त कहा था कि यह बॉडी हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसलिए रख रहे हैं ताकि ये देश में वॉचडॉग ऑफ मेरिट का काम करे। मतलब देश के ऑफिसर्स का जब चयन हो, जब उनका रिक्रूटमेंट हो, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर वो हो, ये इंश्योर करने का काम यूपीएससी को दिया गया है। और इसीलिए आईन में रख करके उसको वो स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि कोई उसके काम में इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक है, हमेशा हम देखते हैं, आप कुछ अगले महीने के एंड तक यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, अमूमन शाम के वक्त, देर शाम में रिजल्ट आता है, और फिर न्यूज चैनल्स और दूसरे दिन का पेपर ये पूरी तरीके से यूपीएससी के रिजल्ट पर फोकस्ड होता है। फर्स्ट पेज पर अक्सर हम देखते हैं कि किसी रिक्शा वाले का बेटा या किसी किसान का बेटा जो है वो यूपीएससी एग्जाम को टॉप कर जाता है। ये इसी वजह से पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी वॉचडॉग ऑफ मेरिट का काम करती है। आपके अंदर फायर और पोटेंशियल है तो यूपीएससी इंश्योर करती है कि आपका सिलेक्शन हो। एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके पास में वो स्पिरिट और डिटर्मिनेशन है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। अब हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में और ज्यादा टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी जो एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करती हैं, इनमें सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये एक ऐसी एग्जाम है जो आपके लिए 23 गवर्नमेंट सर्विसेज के रास्ते ओपन करती है। मतलब एक एग्जाम आप क्लियर कीजिए और 23 अलग अलग भारत सरकार की प्रीमियर सर्विसेज के रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं। इन सर्विसेज में से हर एक जो है वो खूब से खूबतर है। ठीक है, हर एक सर्विस का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर में वो देश के प्रशासन में काम करती है। इनमें से जो ज्यादा फेमस है इनके बारे में आप जानते ही हैं, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भारत का सभी प्रशासन का स्ट्रक्चर मैन करने वाली, उसको चलाने वाली जो सर्विस है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक, टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द कंट्री इज दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो नीचे से लेकर के तालुका लेवल से लेकर के राइट एट द टॉप कैबिनेट सेक्रेटरी तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स भारत के प्रशासन को चलाते हैं। ठीक है, अंसार शेख जिनका मैंने जिक्र किया, जाते जाते आपको बताता चलूं कि 22 साल की उम्र में जो ये बच्चा इस एग्जाम को इसने सक्सेसफुली क्लियर किया है, इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन फ्रेंड्स दैट ही विल बिकम समडे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जितनी कम उम्र में आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, उतना लंबा सर्विस का टेन्योर आपको मिलता है।
और फिर उतने ज्यादा आपके इम्कानात चांसेस होते हैं कि आप टॉप रैंकिंग पोजीशंस तक, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इन पोजीशंस तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो खास तौर पे यंग जो कैंडिडेट्स इस वेबिनार को देख रहे हैं, मैं ये चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं। इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज, देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडियन पुलिस सर्विसेज पुलिस फोर्स को हेड करती है। एडिशनल एसपी रैंक से शुरू होकर के डीजीपी रैंक तक जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से आते हैं। ठीक है, अगर आप फील्ड पर या एक्शन ओरिएंटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, वर्दी, यूनिफॉर्म, इसकी अगर आपको जो है वो शौक है, इस किस्म के यूनिफॉर्म सर्विस की अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करियर बनाएं, तो इंडियन पुलिस सर्विसेज आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनली चार्मिंग सर्विस फ्रेंड्स। जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पर सिपाही देश की रक्षा के लिए जो है वो लड़ता है, फाइट करता है, उसी तरीके से अलग अलग देशों में और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में देश के इंटरेस्ट्स को अपहोल्ड करने के लिए हमारी फॉरेन सर्विस काम करती है। अलग अलग कंट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में एज डिप्लोमैट्स, एज एम्बेसडर्स आप काम कर सकते हैं एज इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स। मेरे एक अजीज दोस्त इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्ट हुए और उनको अरबिक फैमिली फॉरेन सर्विसेज में लैंग्वेज बेस्ड फैमिलीज होती हैं, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस बेस्ड फैमिलीज। सो ही इज पार्ट ऑफ द अरबिक लैंग्वेज फैमिली इनिशियली। सो टू टीच हिम अरबिक, बैक देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेंट हिम टू कायरो यूनिवर्सिटी। अरबिक सिखाने के लिए he was sent to Cairo University. He had extensive opportunity to travel across the Arab world. He was hosted by the royal family of Saudi Arabia and was given exclusive access to even the Haramain Sharif family. इससे बड़ा प्रिविलेज और क्या हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इस एग्जाम के जरिए से आप अपने करियर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, द लिस्ट गोज ऑन। इसके लिए आपको एनुअली जो ये एग्जाम कंडक्ट होती है, इस एग्जाम को आपने क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं व्हाई शुड यू गो फॉर दीज सर्विसेज। सिविल सर्विसेज ही आप करियर क्यों बनाए, इसकी 4 अहम वजूहात, रीजंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला रीजन, करियर नॉट जस्ट अ जॉब। दुनिया में हर किसी को अपनी मार्श के लिए, अपनी इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। ठीक है, जब आप अपना लेबर, अपना टैलेंट, स्किल कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके एवज में आपको एक सैलरी मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक जॉब है। ठीक है, लेकिन करियर ये जॉब से ज्यादा बड़ी कंसेप्ट है। जॉब इज अ सबसेट एंड करियर इज अ बिगर सुपरसेट। Career not only involves getting salary or wages, it involves a lot more. आपका काम आपको किस किस्म के तजुर्बे देता है, एक्सपीरियंसेस देता है, आपको कैसे एक्सपोजर्स देता है, आपको क्या लर्निंग और डेवलपमेंट मिलती है, आपको समाज में किस किस्म की रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा मिलती है, आप आपके करियर के जरिए से कैसे समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सभी चीजें मिलकर के एक करियर बनाती है। सिविल सेवाएं, सिविल सर्विसेज आपको एक कंप्लीट करियर देते हैं। दे प्रोवाइड यू एन एक्सपोजर लाइक नो अदर जॉब और करियर कैन डू इन द एंटायर कंट्री। आईएएस के तौर पे काम करता हुआ ऑफिसर कभी कलेक्टर होता है, तो कभी वो किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डायरेक्टर के तौर पे काम करता है, कभी उसको डेप्यूटेशन पे वर्ल्ड बैंक में भेजा जाता है, तो कभी किसी मिनिस्ट्री में वो सेक्रेटरी के तौर पे ज्वाइन होता है। ऐसे डिस्पैरेट एक्सपीरियंसेस आपको सिविल सर्विस ही दे सकती है। सेकंड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है दोस्तों, हमारे अंदर के हिडन टैलेंट्स और पोटेंशियल्स को पूरी तरीके से अचीव करना। ठीक है, खुदा ने हर इंसान को बेइंतहा सलाहियतों से, कुव्वतों से नवाजा है। ठीक है,
और ये सलाहियतें, कुव्वतें तब निखर कर आती हैं जब आप एक के बाद एक बड़े चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज पूरे करियर में आपको ऐसे कई मौके फराहम करती हैं जहां पर आप आपके इस हिडन पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स ने भारत की डेवलपमेंट में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया और उसके जरिए से अपने बेस्ट पोटेंशियल को अचीव किया। टीएन सेशन के नाम से शायद आप लोग वाकिफ होंगे। भारत की जो इलेक्शन प्रक्रिया पहले थी 1990 से पहले, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी, बहुत ही उसमें चैलेंजेस थे। उस पूरे सिस्टम को अगर किसी एक व्यक्ति ने चेंज किया है तो वो आईएएस ऑफिसर टीएन सेशन है। ऐसे मौके आपको सिविल सर्विसेज में मिलते हैं। तीसरा, एक्सपोजर, जिसको मैंने ऊपर अभी जिक्र किया ही है। अलग अलग एरियाज में एक्सपोजर सिविल सर्विसेज की तरह आपको कोई और करियर नहीं दे सकता। एंड लास्टली, पब्लिक इंटरफेस। पब्लिक इंटरफेस फ्रेंड्स इज अबाउट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक। आईएएस और आईपीएस ये कटिंग एज पर काम करते हैं, मतलब डायरेक्ट उनके डिसीजंस का इंपैक्ट पब्लिक पर होता है। आज देखिए, हम कोरोना के चलते काफी वक्त से लॉकडाउन में रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान में भी हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी कोरोना के साथ में लड़ रही है। इनके द्वारा लिए गए फैसले, एक साइन, एक डिसीजन कई लाख लोगों की जिंदगी को मुतासिर करता है। ठीक है, एज अ एसडीएम इटसेल्फ शुरुआत में ही आप जो है एक ग्रुप ऑफ तालुका, 7-8 तालुका के एडमिनिस्ट्रेशन को आप हेड करते हैं और आपके फैसले वहां पे रहने वाले लोगों की जिंदगी को मुतासिर करते हैं। ठीक है, सो दिस गिव्स यू ट्रेमेंडस पब्लिक इंटरफेस थ्रू आउट योर करियर। सो दिस इज व्हाई आई वांट यू टू गो फॉर दीज सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, क्यों करना है इसको तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कौन और कैसे इसको कर सकता है। पहला क्राइटेरिया ऑब्वियस है, इंडियन नेशनल आपको होना है। देन ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एग्जाम की सेकेंड स्टेज तक आपकी मार्क लिस्ट हाथ में आ जानी चाहिए। तो कॉलेज के साथ साथ में तैयारी करते हुए फाइनल ईयर में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स 32 साल की उम्र तक यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं और 38 साल तक स्टेट सर्विसेज की एग्जाम। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन भी है। 35 तक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स एग्जाम को दे सकते हैं। एससी एसटी अप टू 5 years more, that is up to 37 years they can appear in this exam. MPSC या स्टेट सर्विसेज में अगेन फर्दर रिलैक्सेशंस आर एप्लीकेबल। यूपीएससी में आपके अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। ओपन का कैंडिडेट 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी का कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी कैंडिडेट टिल हिज एज अलाउज वो अटेम्प्ट एग्जाम में दे सकता है। स्टेट सर्विसेज में अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक आपकी एज बार नहीं हो जाती उस वक्त तक आप एग्जाम में अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम के स्ट्रक्चर को। एग्जाम दोस्तों 3 स्टेजेस में होती हैं। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा स्टेज है मेन एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू। अब हम इन सभी स्टेजेस के बारे में थोड़े से और टेक्निकलिटीज समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेज या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये एक फिल्टर के तौर पे काम करता है। क्योंकि इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, एप्लीकेंट्स आते हैं। इस वजह से यूपीएससी जो इनसिंसियर कैंडिडेट्स हैं इनको फर्स्ट स्टेज पर फिल्टर आउट करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं खास तौर पे यहां उसका जिक्र करते हुए चलता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये अक्सर आकर के कहते हैं कि सर इस एग्जाम में तो कई लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट होती है 1000 के आसपास में, तो इसका सक्सेस रेशियो जो है वो काफी कम है। मैं ऐसे कैंडिडेट से कहता हूं कि एप्लीकेंट होना और एस्पिरेंट होना इसमें फर्क होता है।
आपकी बात ये दुरुस्त है कि कई लाख एप्लीकेंट्स आते हैं, लेकिन एक्चुअल एस्पिरेंट्स उसमें से बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम आ गई है, फॉर्म भर देते हैं, देखते हैं हुआ तो हुआ, इस किस्म के एटीट्यूड वाले मेजॉरिटी एप्लीकेंट्स होते हैं। ठीक है, a limited number of actually applicants are aspirants, that is seriously उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी की होती है। और मेरे जवाद साहब, आप म्यूट पे चले गए। जवाद साहब, जी शहजाद सर, am I yeah, audible yeah, now? yeah. Now you're audible. My discussion on this slide, was it audible? We heard until कि लोग ऐसे आते हैं कि ये एटीट्यूड के साथ हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। So it was an aspirant वाली चीज। Fair enough. Okay. Thank you, Shahzad bhai. So this first stage is designed to filter out those candidates who are not serious in this exam. So in this stage, you are supposed to appear for two papers, General Studies and Civil Services Aptitude Test. General Studies paper includes subjects like history, geography, Indian polity, society, economy, and current affairs. These are the 7 or 6 dominant sections of this particular paper. The nature of this stage is objective. Objective मतलब एक सवाल और उसके 4 alternatives दिए जाते हैं, जिसमें से सही alternative आपको select करना होता है. There is negative marking, 1/3. If you mark a wrong answer, then 1/3 marks are deducted. So if the question is of 1 mark, for example, 1/3 marks are deducted from your score. Second paper is CSAT. CSAT paper, friends, is like your scholarship exam papers. इसमें basic maths, basic reading comprehension, logic और decision making, इसके सवाल आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इस पेपर की खासियत यह है कि ये पेपर आपको बस पास करना होता है। 200 मार्क्स टोटल इस पेपर के होते हैं, जिसमें से सिर्फ 1/3 यानी 66 मार्क्स आपको स्कोर करना है। वंस यू आर डन विद 66 मार्क्स, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर ये पेपर जो है आपके फाइनल मार्क्स में एड अप नहीं होता। आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 के मार्क्स ही फिर डिसाइड करते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे या नहीं। ठीक है, you just have to qualify in this paper by scoring 1/3 marks. So once you have done scored 1/3 marks, तो उसके beyond आप कितना स्कोर करते हैं वो मैटर नहीं करता। So this is the first stage. इसके बाद में आता है second stage of the exam, which is main examination. Main examination is descriptive in nature. Unlike in case of prelims, main exam में आपको आंसर्स जो है वो पेपर पर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, जैसा यूनिवर्सिटीज के आपके पेपर्स होते हैं वैसे आंसर्स लिखने होते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स इस स्टेज में आपको पूछे जाते हैं। ईच पेपर इज फॉर 250 मार्क्स ईच। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंक्लूड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। पेपर 2 इंक्लूड्स Indian polity, governance, and international relations. Paper 3 includes economy, society, environment, and science and technology. And paper 4 deals with ethics, integrity, and aptitude. Paper 4 is an innovation that UPSC has introduced. In this paper, UPSC wants to test the kind of
values, ethics and attitude the candidate has. और इसके लिए केस स्टडीज मेथड यूज किया जाता है। थियरी क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको स्पेसिफिक केसेस दी जाती हैं, एक सिचुएशन दिया जाता है और आपको उस सिचुएशन को एनालाइज करके अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है और इसके बेसिस पर यूपीएससी आपको मार्क्स देता है। इसके बाद अगला पेपर होता है एसे। स्कूल के जमाने में आपने एसेस लिखे हैं, ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन में आपकी हैबिट शायद टूट गई होगी, लेकिन यूपीएससी में फिर से एक बार आपको एसेस लिखने होते हैं। 3 आवर्स में 2 एसेस in the range of 1000 words each you have to write for 250 marks. तो अब तक के सारे पेपर्स आपके मिला करके बन जाते हैं 1000 मार्क्स। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। यूपीएससी ने दी हुई लिस्ट 28 सब्जेक्ट्स की, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसमें तमाम ग्रेजुएशन के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह हो, या साइंस के बेसिक साइंसेस हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स, ये सभी इस लिस्ट में दिए गए हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो ये टोटल मिलाकर के आपका ये सेकेंड स्टेज मेन एग्जामिनेशन का बन जाता है 1750 मार्क्स का, 1750 मार्क्स। इसके बेसिस पर, आपके इस स्कोर के बेसिस पर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए इनवाइट किया जाता है, दैट इज फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू इज आउट ऑफ 275 मार्क्स। रिटायर्ड सीनियर bureaucrats and other eminent people from different walks of life, they comprise a panel of 5 to 7 members which interviews the candidates, and you are given marks out of 275. Finally, adding your score in mains out of 1750 and this 275 marks in interview, the final merit list is released. And on the basis of your score and your preference, you are allocated a service that you have preferred. तो यहां तक थी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस एग्जाम के सिलसिले में। अब थोड़ा सा हम एग्जाम के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम दूसरे और एग्जाम से कैसे मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, इसको समझना जरूरी है। अब तक आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड्स की एग्जाम दी है, इन एग्जाम से इस एग्जाम का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज दिस एग्जाम डिमांड्स यू टू गेट इनटू द मैजिकल फिगर। मैजिकल फिगर मतलब उस साल जितने पोस्ट हैं, से 1000 पोस्ट आर देयर, देन योर मार्क्स मस्ट बी गुड इनफ फॉर यू टू बी इन द टॉप 1000 रैंक। इफ योर रैंक टर्न्स आउट टू बी 1001, then in that case you get nothing. Okay? You have to start the process all over again with prelims, mains and interview lined up in the cycle. Okay? So not only your performance individually, but also your performance relatively vis-a-vis other competitors matters over here. Okay? Unlike in your university exams where you score more than 60% or so and you are in first class, 75% plus and you get distinction. Here, individually your score is immaterial. Where you stand vis-a-vis the competition is what is important. Second is the dynamic nature of this exam. Unlike your board or college exams, which generally have a set kind of a pattern, this exam is known to outfox you. एग्जाम जो है वो बिल्कुल किसी सेट पैटर्न के तरीके से सवाल नहीं पूछती है, ताकि कैंडिडेट की रियल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जा सके। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको यहां पर यूपीएससी का एक सवाल बताता चलता हूं। यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी में गवर्नर नाम का एक टॉपिक हम पढ़ते हैं। जैसे हर स्टेट में गवर्नर नाम का एक पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में हम गवर्नर का अपॉइंटमेंट, उनके रोल्स,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिमूवल, इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन जब सवाल यूपीएससी ने इस पर पूछा था तो इन सभी चीजों से मुख्तलिफ यूपीएससी ने सवाल पूछा, शुड द पोस्ट ऑफ गवर्नर बी एबॉलिश्ड इन इंडिया। ठीक है, तो किसी भी टेक्निकलिटी को ना पूछते हुए यूपीएससी ने सवाल को ट्विस्ट किया और यह पूछा, आपका ओपिनियन पूछा कि क्या इस पोस्ट को भारत में हमने हटा देना चाहिए। गवर्नर की पोस्ट के रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी, उसकी बैकड्रॉप में यूपीएससी ने इस किस्म का सवाल पूछा। ठीक है, अब इसका रेडीमेड जवाब आपको किसी स्टैंडर्ड गाइड में नहीं मिलता। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी बनाते हैं कि आप ऐसे सवालों का आप जवाब दे सकें। दिस इज द डायनामिक नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। थर्ड एस्पेक्ट इज मल्टीपल सब्जेक्ट्स। Multiple subjects, we study several different kind of subjects in the course of our preparation. I'm going to give you an overview of that also. Unlike in our regular graduation courses where we are focused on niche areas, there is a wide bouquet of subjects that we study for civil services exam. History, polity, geography, some arts based subjects, then science and technology, current affairs, economics, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं आपसे। देन ब्रॉड सिलेबस, रिलेटिवली इस एग्जाम का सिलेबस जो है वो ब्रॉड है। इन टर्म्स ऑफ डेप्थ उसकी बहुत ज्यादा नहीं है। एनी एजुकेटेड पर्सन जिसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता है उतनी ही इस एग्जाम की डेप्थ है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इट्स विड्थ, इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रॉडनेस, इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा उसका कैनवस आपको ब्रॉड जरूर लगता है। Then the exam focuses on conceptual clarity a lot. You cannot get away with simply rote learning. इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए conceptual clarity बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The questions are framed in such a manner that only if you understand the real concepts you will be able to answer the questions. If you are dependent on rote learning, cramming up, जिसको हम colloquial language में रट्टा कहते हैं, तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज प्रिसाइसनेस। इन योर एक्सप्रेशन इन मेंस और इन योर आंसर्स इन इंटरव्यू, आपका जो एक्सप्रेशन है वो प्रिसाइज होना चाहिए। नो बीटिंग अराउंड द बुश। जो सवाल पूछा गया है बिल्कुल उसके मुतालिक आपको जवाब देना है। जस्ट एक्सपेंडिंग योर वर्ड्स डज नॉट हेल्प इन दिस एग्जाम। इन फैक्ट इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। अगर आप मुद्दे से हट करके आप अगर ज्यादा चीजें वहां पर आंसर्स में अगर लिखते हैं तो नंबर मिलने की जगह आपके नंबर कम होते हैं। ठीक है, तो प्रिसाइसनेस, सटीक पना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो आपकी आंसर्स में होना चाहिए। लास्टली स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऑल ऑफ दिस दैट यू डू, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यहां पर आपको वक्त कम मिलता है। 3 hours के ड्यूरेशन में यू आर सपोज टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। And unless you have practice and you have exam simulated experience, completing the paper also is a very big challenge. So speed and accuracy are added, you can say, challenges of this exam. So this was in brief regarding the nature of civil services exam. Now these are the broad components, friends, that you study in the course of your preparation. History, geography, history of India and world, geography also of India and world, then Indian polity, economy, environment, social issues that are going on right now, international relations, both at international level and bilaterally India's relations with other countries, science and technology, ethics, internal security, and lastly and very importantly, the current affairs. These are the broad, you can say, components that one has to prepare in the course of this exam. Naturally, in terms of its canvas, the syllabus is relatively, you can say, broad. Now, friends, I'll give you a stepwise guideline or process which can be used by candidates to prepare for this exam. सबसे पहले जब आप इस इम्तिहान की तैयारी शुरू करते हैं तो आपने यूपीएससी की वेबसाइट से एग्जाम के सिलेबस को डाउनलोड करना है। ठीक है,
और उस सिलेबस को मेनी टाइम्स ओवर आपने रीड करना है। सिलेबस आपको बताता है कि यूपीएससी आपको किन चीजों पे सवाल पूछ सकती है, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, इनको डाउनलोड करके इनका एनालिसिस आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। These are the first two steps that you are supposed to do if you are serious about appearing for this exam. यूपीएससी ने आपको सिर्फ दो ही चीजें दी हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो हमारे लिए ये दो गुरु की तरह हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट से अक्सर कहता हूं कि ये दो ऐसे गुरु हैं जिनके साथ में जब आप वक्त टाइम स्पेंड करते हैं तो इस एग्जाम के रिलेटेड इनसाइट्स आपके ऊपर में खुलती चली जाती हैं, ठीक है। यूपीएससी क्या पूछ सकता है और कैसे पूछ सकता है, ये इन दोनों चीजों से आपको पता चलता है। Once you have spent some time with this, then you can start with your actual preparation for the exam. सबसे पहले आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक्स, ये आइडियली आपने पढ़ना चाहिए। अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं तो आपके पास में इसके लिए मोर देन एम्पल टाइम है कि आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जब मैं कहता हूं तो आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर हम इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं और स्कूल लेवल की टेक्स्ट बुक्स इसके लिए क्यों पढ़ी जाए। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से देती हैं। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करते हुए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एनसीईआरटीज को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी बन जाता है। ये पहली वजह है जिसके लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है। दूसरी वजह यह भी है कि यूपीएससी डायरेक्टली एनसीईआरटी के बेसिस पर सवाल पूछती है। एनसीईआरटी से लास्ट टू लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का एक सवाल पूछा था। मिसाल के तौर पे आपको बताता चल रहा हूं, क्लास 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में डेजर्ट एरियाज में पत्तों में, लीव्स में क्या चेंजेस आते हैं ये दिया हुआ है और बाकायदा वहीं से बिल्कुल लेकर के यूपीएससी ने प्रिलिमिनरी एग्जाम में सवाल पूछा था। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज। सो फर्स्ट स्टेप इन योर एक्चुअल प्रिपरेशन इज प्रिपेयरिंग योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज एक बार आपकी हो जाती है तो उसके बाद में आप बेसिक टेक्स्ट पर जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट की, जो हमने ब्रॉड सब्जेक्ट्स देखे हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की कुछ स्टैंडर्ड बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं जो एनसीईआरटीज के बाद में फिर आप प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, इसके ये 3 स्टेप्स हैं। हाउ डू यू गो अबाउट दिस प्रिपरेशन? पहला जो स्टेप है आपका प्रिपरेशन का, वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटीज के जरिए से आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड स्टेज पर जाते हैं जहां पर आप टॉपिक्स के रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन बेस को प्रिपेयर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नर ये पोस्ट या ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब गवर्नर का रोल भारत की पॉलिटी में क्या है वो आपको कंसेप्चुअली एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब स्टैंडर्ड बुक में जाते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई बुक इंडियन पॉलिटी, इसमें आपको इस टॉपिक का सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन बेस आपको मिलता है, ठीक है। तो पहले आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी की और फिर उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपने एड अप की। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है एडिंग करंट डायमेंशन। उस टॉपिक के सिलसिले में हाल फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है या हो रही है, इसको आपने उसके बाद प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। जैसे गवर्नर इस पोस्ट के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से काफी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, अरुणाचल प्रदेश कुछ महीनों पहले, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर इस पोस्ट को जो है वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में ये इन्वॉल्व रही।
इसके सिलसिले में जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं फिर वो प्रिपेयर करना और अपनी नोट में एड अप करना, ये आपका जो है वो स्टेप का प्रोसेस का एक स्टेप है। एक बार ये तीनों स्टेप्स आपके हो जाते हैं, उसके बाद में देन कम्स आंसर राइटिंग। उस टॉपिक के सिलसिले में आज से पहले जो भी यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं या क्लासेस के मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो फिर आप आंसर राइटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सफिशिएंटली आपने सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स पर आंसर्स लिख लिए, वो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो गया, तो उसके बाद आखिरी स्टेज आता है सिम्युलेटेड एग्जाम प्रैक्टिस। मतलब जिस तरीके से एग्जाम होती है बिल्कुल उसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस, उतना ही टाइम ड्यूरेशन और उसी एनवायरनमेंट में पेपर सॉल्व करना, ये कंपटीशन में आगे रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये लास्ट स्टेज सिम्युलेटेड एग्जाम प्रैक्टिस। तो एक बार दोहरा दूं, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, इसमें से आपको करना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग अप ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड एडिंग अप करंट अफेयर्स। Once you have done that, then answer writing and exam simulated practice is what you do in the final stages. अब मैं आपको शेयर करता हूं 7 स्टेप स्टडी टेक्निक। जब भी आप कोई टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं, खास तौर पे सिविल सर्विसेज की तैयारी में जहां मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स आपको प्रिपेयर करना होता है, तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड अप्रोच हेल्प करता है। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये 7 step study technique suggest करता हूं। Okay? So whenever you start a particular textbook, the first reading that you do, okay, this should be a kind of skimming। मतलब पहली रीडिंग में right from first chapter, first word, cover to cover आपने नहीं पढ़ना है। okay? पहली रीडिंग में आपने इंडेक्स और जनरली टॉपिक्स का लेआउट और फ्लो, इसको बस जिप थ्रू करना है। इंटेंशन हमारा ये है, मकसद ये है कि पहली रीडिंग में वी जस्ट वांट टू गेट फैमिलियराइज्ड विद द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट बुक। राइट फ्रॉम फर्स्ट गो, इफ यू स्टार्ट रीडिंग वर्ड टू वर्ड, देन यू टेंड टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय द टेक्स्ट बुक। पहले आप टेक्स्ट बुक से फैमिलियराइज हो जाइए, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप इसके लिए स्पेंड कर सकते हैं। एक बार ये स्किमिंग आपने कर ली, तो फिर आप उसके बाद सेकेंड रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड रीडिंग इज एक्चुअल वर्ड टू वर्ड रीडिंग। पढ़ते हुए टॉपिक्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन और हाईलाइट करते हुए आपने आगे चलना है। प्रैक्टिकली मैं देखता हूं कि बच्चे अक्सर पूरी टेक्स्ट बुक्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक के हर टॉपिक के हर पैराग्राफ में एक बेसिक आइडिया होता है और कुछ उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जो बेसिक आइडिया और सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कीवर्ड्स, बस इनको ही आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। द इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस इज टू फैसिलिटेट रिवीजन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर पूरी ही टेक्स्ट बुक अंडरलाइंड है तो फिर आप रिवीजन पूरी ही टेक्स्ट बुक का आपको करना पड़ेगा। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। Once you are done with the second reading, then you come to the third reading where you make side notes and page notes. टेक्स्ट बुक्स में ही साइड में जहां कॉलम या स्पेस अवेलेबल है, वहां पर कीवर्ड्स की आप नोट्स बना करके रख सकते हैं। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। सिलेबस वास्ट है और सोर्सेज मल्टीपल, और इन सबको रिवाइज करने के लिए आपके नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे। इसलिए नोट्स बनाना ये लाजमी है। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाए जाए, ये हर एक की स्टाइल के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन नोट्स बनाना, खास तौर पे माइंड मैप्स और माइक्रो नोट्स के जरिए से बनाना, ये बहुत जरूरी होता है। एक बार आपने ये 3 स्टेप रीडिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद टॉपिक्स को आपने कंप्रेस करना है यूजिंग माइंड मैप्स एंड माइक्रो नोट्स। माइंड मैप कहते हैं एक फ्लो चार्ट या डायग्राम को, जो सारे ही टॉपिक को एक छोटे से डायग्राम के अंदर में वो समेट लेता है। ऐसे माइंड मैप्स और माइक्रो नोट्स से रिवीजन करना और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सो दीज 3 स्टेप रीडिंग्स एंड देन प्रिपेयरिंग माइंड मैप्स एंड माइक्रो नोट्स इज योर 4th स्टेप। आफ्टर यू आर डन विद दिस, देन कंटेम्पलेशन इज वेरी क्रूशियल। कंटेम्पलेशन का मतलब है
कि नोट्स और मटेरियल इन सबको साइड में रख करके कुछ वक्त आप बस फोकस करके कंसेप्ट्स और जो भी आपने पढ़ा है इनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं without having any reference material before you. This is a very crucial step, friends, which students often miss out on. अगर आप कंटेम्पलेट नहीं करते जो भी आपने पढ़ा है तो वो कंसेप्ट्स आपकी सबकॉन्शियस में नहीं जाते, ठीक है, और फिर आप हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स पर। एग्जाम में टेक्स्ट बुक्स आपके साथ में नहीं होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका सबकॉन्शियस ही आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए कंटेम्पलेशन के जरिए से आपको इन कंसेप्ट्स को इम्बाइब करना है by keeping away all the resources and just focusing on what all you have read and understood. Once you are done with that, then attempt answer writing. Prelims के MCQs हो या मेंस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इनको फिर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जिससे ये अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइनल स्टेज इज रिविजन। रिविजन is the most important aspect in this entire 7-step process. What happens is if you've done all of this, but if you don't spend time to revise, then this entire effort goes waste. Exam का content मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को कि थोड़ा broad है, और broad होने की वजह से revision जो है उसका वो बहुत ज्यादा important role play करता है, ठीक है। So this is the 7-step process. अब मैं आपको specific NCERTs बताते चलता हूं जो मस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आइडियली क्लास 6 to class 12th all the NCERTs must be referred to, but if you have time constraint, if you are attempting immediately next year or you have some other commitments, so these are the minimum that you need to do. In case of geography, class 6 to 12th all NCERTs are must, there's no exception here. In case of polity, class 8 to 12th NCERTs can be relied on. In case of history, old NCERTs which are available on internet, you can simply download these 3 NCERTs, ancient India, medieval India, modern and world, 4 NCERTs, old ones, and that will take care of your history preparation. Then economy, class 11th and 12th NCERTs will suffice. Society, sociology textbooks, NCERT textbooks of class 11th and 12th standards will help you. Science, class 8 to 10th will help you. So these are the NCERT textbooks that you must compulsorily refer to. इसके अलावा स्टेट सर्विसेज अगर आप महाराष्ट्र की प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 to 10 स्टैंडर्ड की आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो ये है NCERT टेक्स्ट बुक्स। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आप प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं which you can use. Instead of detailing each one of them, those of you who are keen, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें so that we can optimize on time. All the important basic textbooks have been mentioned in this particular slide over here. ठीक है। अब इसके बाद मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं शेयर करता हूं। 28 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट यूपीएससी ने आपको दी है, जिनमें से एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसमें ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एटसेट्रा। वैसे ही साइंस के सभी बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। लिटरेचर में सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के लिटरेचर्स पार्ट है इस लिस्ट का। उसमें खास तौर पे हिंदी, उर्दू, मराठी, इन तीनों में से कोई एक लिटरेचर में शायद आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जो कैंडिडेट्स उर्दू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए उर्दू लिटरेचर ये बहुत ही हैंडी ऑप्शनल साबित हो रहा है। उर्दू लिटरेचर का सिलेबस रिलेटिवली कम है और 2.5 से 3 महीने की तैयारी में उर्दू लिटरेचर आसानी से तैयार हो जाता है और इसके नंबर भी काफी अच्छे आते हैं। तो उर्दू लिटरेचर अगर आप उर्दू जानते हैं तो इसके बारे में जरूर एक दफा आप सोचिए उर्दू लिटरेचर के बारे में, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की जो कोर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये तीनों ही इंक्लूडेड हैं, और साथ ही मेडिकल साइंस। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको बस सिलेक्ट करना है एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ये कभी कभी कैंडिडेट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं ये 3 क्राइटेरियाज आपको यहां शेयर कर रहा हूं
जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है आपका इंटरेस्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट की डेप्थ उस सब्जेक्ट के मास्टर्स के लेवल की होती है। मतलब अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो एमए हिस्ट्री लेवल की तैयारी आपसे एक्सपेक्टेड होती है, उस लेवल का सिलेबस है। तो अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी आप उसको उस डेप्थ तक प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? और कम से कम 1-1.5 साल की तैयारी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में करनी होती है। इस वजह से यह जरूरी है कि आपको उस सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट हो। जस्ट बिकॉज किसी फ्रेंड ने लिया है आपका कोई सब्जेक्ट या किसी टॉपर ने वो सब्जेक्ट रखा था, ये आपकी बुनियाद नहीं होनी चाहिए सब्जेक्ट के सिलेक्शन की। योर इंटरेस्ट मैटर्स, नंबर 1। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। ऑप्शनल की तैयारी ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इस वजह से उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई ना कोई गाइड आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। ये प्रोफेशनल क्लास हो सकता है या कोई सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने मेन एग्जाम लिखा है उस सब्जेक्ट को लेकर के। ऐसा कोई गाइड आपको अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट ही आप लें। सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। ऑप्शनल्स की तैयारी चूंकि थोड़ी वास्ट है, इस वजह से ये काफी हेल्पफुल होता है अगर उस ऑप्शनल का रेडीमेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो तो। कुछ सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर साइंस के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इनका कोई रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये सब्जेक्ट्स लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया, इंटरेस्ट, गाइडेंस और स्टडी मटेरियल, ये आपके लिए जहां फिट होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्तसर मैं करंट अफेयर्स का यहां पर मैं जिक्र करते हुए चलता हूं। सिविल सर्विसेज और दीगर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमेशा रहता है। सिविल सर्विसेज में खास तौर पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 40% आपकी तैयारी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट ये करंट अफेयर्स पर सर्व होती है। इस वजह से इस सब्जेक्ट की तैयारी पर खास तौर पे तवज्जो देना जरूरी है। इसके लिए आप अभी से, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट स्टेज पर ही क्यों ना हो, आप आदत लगा लीजिए एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने की, वन गुड क्वालिटी न्यूज़पेपर। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं जो कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। खास तौर पे आइडियली द हिंदू। इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ने की आप आदत रखिए। कॉलेज या बाकी और कमिटमेंट्स में अगर वक्त कम मिलता है तो एटलीस्ट 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर आप निकालिए और डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। योजना और कुरुक्षेत्र ये 2 भारत सरकार की मंथली मैगजीन्स हैं जो कि इस तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो ये मैगजीन्स भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये मैगजीन्स आप जब अगले साल एग्जाम देने वाले होंगे, मतलब एग्जाम से 1 साल पहले इनको आप रेफर करना स्टार्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्लास मटेरियल, क्लासेस के ऑनलाइन हमारी भी या बाकी और भी मटेरियल अवेलेबल होता है, आप वो मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। एंड देन गुड डिबेट शोज, अच्छे क्वालिटी के डिबेट शोज जैसे राज्यसभा टीवी, इसके जो डिबेट शोज होते हैं ये आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं किसी भी इशू को देखने का, जिसको हम कहते हैं नजरिया, वो आपको डिबेट शोज से मिलता है। ये वैल्यू एडिशन का काम करता है आपके आंसर्स और एसेस में। तो इन चीजों को यूज करके आप करंट अफेयर्स की तैयारी आप मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा टेंजेंशियल लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इशू है इंग्लिश का। क्योंकि बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वेबिनार से जुड़े होंगे, इसलिए इंग्लिश की डेवलपमेंट के मुतालिक भी कुछ थोड़े से इनसाइट्स मैं आपको यहां पर मैं शेयर करते हुए चलता हूं। पहले तो एक चीज वाजे कर दूं कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कोई हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं होती। जस्ट एनी ग्रेजुएट, द लेवल ऑफ इंग्लिश दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ग्रेजुएट कैंडिडेट, उतनी इंग्लिश होना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश पर अगर आपकी कंट्रोल है, कमांड है, तो अदरवाइज भी आपको करियर के अंदर में वो काफी हेल्प कर सकती है। इसलिए कुछ थोड़े से फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ब्रीफली मैं यहां सजेस्ट करते हुए चलता हूं। इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली
पहला जो फाउंडेशन है वो है ग्रामर का। मैं अक्सर देखता हूं सिर्फ वर्नैक्युलर मीडियम ही नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने तालीम ली है ऐसे कैंडिडेट्स का भी फाउंडेशनल जो एस्पेक्ट है ग्रामर का वो थोड़ा वीक होता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब की अग्रीमेंट हो, मिसप्लेस्ड प्रोनाउंस हो, ठीक है, एपोस्ट्रोफी या कॉमर्स का मिसयूज हो, ये कॉमनली मैं कैंडिडेट्स के आंसर शीट्स में देखता हूं। ये ना हो इसलिए थोड़ा सा आप अगर इंग्लिश में एग्जाम लिखना चाह रहे हैं तो आपका इंग्लिश का फाउंडेशन आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपको वैसे भी करियर्स के अंदर में हेल्प करेगा। अब ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश की ग्रामर बुक लेकर के आप बेसिक जो टॉपिक्स हैं जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ऐसे जो कोर टॉपिक्स है ग्रामर की, इनको आप थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छी किताब है मार्केट में, मैं रेकमेंड करूंगा कि ये आप जरूर रेफर कर सकते हैं। किताब का टाइटल है इंग्लिश इज इजी। टाइटल ऑफ द बुक इज इंग्लिश इज इजी। बहुत आसान तरीके से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के साथ में इस किताब में बेसिक फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपके फंडामेंटल्स आपको लगता है कमजोर है तो ये किताब आप जरूर रेफर करें उसके लिए। इसके बाद इंग्लिश का सेकंड पिलर है वोकैबुलरी। अच्छी वोकैबुलरी होना आपके एक्सप्रेशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, मैं आपको यहां एक मिसाल देता हूं। उर्दू में हम जिसको कहते हैं गुस्सा, उसके लिए देखिए इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं। एनॉयड, मिफ्ड, एंग्री, फ्यूरियस एंड लिविड। एनॉयड, मिफ्ड, एंग्री, फ्यूरियस, लिविड। मैंने 5 using the word livid is more appropriate than just saying angry. Okay? So language brings, vocabulary brings sharpness to your expression. Building up vocabulary helps you to improve your expression. अब ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 2-3 प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट थिंग, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रोज, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 5 नए वर्ड्स जो आपने पहले नहीं पढ़े थे उनका मीनिंग आप सर्च कीजिए डिक्शनरी में। आजकल तो बहुत सारे एप्स भी अवेलेबल I was disconnected again. We were talking regarding development of vocabulary. Just allow me to share my screen once again. So how would you or how can you develop your vocab? So I mentioned one aspect that was regarding journaling of 5 new words every day. That is one thing that you can do. Second, there is a very nice book available in the market known as Word Power Made Easy. Word Power Made Easy. It's a very good book. Every undergrad student राइटर हैं जिन्होंने साइंटिफिकली वोकैबुलरी कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इस सिलसिले में काफी अच्छे एक्सरसाइजेस दिए हैं। तो आप इस किताब को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इंटरनेट पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बैरॉन्स जीआरई नाम की एक किताब आती है। आई विल स्पेल इट BARRON, बैरॉन एपोस्ट्रोफी S, बैरॉन्स GRE, GRE एग्जाम का नाम है। बैरॉन्स GRE इस किताब में एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट दी है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टैंडर्ड आर्टिकल्स एंड पब्लिकेशंस। सो देयर आर सम 333 वर्ड्स दैट दिस लिस्ट गिव्स यू। सो यू कैन सिंपली डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लिस्ट फ्रॉम इंटरनेट। इट इज गिवन विद मीनिंग्स एंड सेंटेंस यूजेज आल्सो, and then you can use it to develop your vocabulary. So these are some practical things that you can do. And last is fluency. Developing fluency comes from practice. Again, in exam, this is not something that is required, but since we are talking holistically beyond exam also, so casting a good impression
on an interview panel or at your workplace requires you to have some control over your speaking ability also. So listening to good speakers, listening to good debate shows, and talking amongst your friends in correct grammatically sound manner will help you to improve your fluency also. Okay? I'll just take a few more slides, full of slides maybe. I think I've overshot my time. Shehzad bhai, how much time do we have? We have completed 1 hour 30 minutes. Okay, so very briefly, I'll just take some aspects regarding time management. Okay, now students often, after sharing all of these thoughts, you might be thinking that you are stressed for time or stretched for time. How is it that you will do all of these things while pursuing your graduation as well as honoring the other commitments that you have? So for that reason, I have shared here 10 principles of time management that I personally try to use every day. If you implement these 10 principles on a daily basis, I can vouch for this, that in the next couple of months itself, your efficiency will enhance manyfold. So these 10 principles, try to practice it on a daily basis in your life, and that will certainly help you to achieve a lot more than what you would be doing at this stage of life. What are these 10 principles? Number one, always plan the day beforehand. Like when you go to bed, spend the last 15 minutes of your waking hours in planning for the following day. Okay? Every single activity in a time-bound manner has to be planned by you in those 15 minutes. That way, your entire following day is laid out like a GPS. Just like in GPS, we depend completely on that GPS map to travel to places. Similarly, that particular day has been mapped out for you, and then you don't have to spend time in deciding what needs to be taken up. So that's the first principle, plan the day beforehand. Second, organize around energy levels. Everybody has peak energy periods. And in those periods, we must optimize and try to do work which is intellectually more challenging. Like for example, I personally try to schedule such activities from 7 to 11 in the morning and 3 to 7 in the evening. These are my peak hours. So you can also try to schedule those activities which are important for you during your peak hours. With everybody, body clock differs according to person, and you can then find out when is your peak time and schedule your activities accordingly. Third, eat the frog first. This principle basically means that there are certain tasks which keep on bothering us at the back of our mind. Okay? These tasks need to be dealt with first. We tend to procrastinate them. हम इनको avoid करते रहते हैं for some fear inside our minds. So instead of avoiding such tasks, you must take them head on and finish them off. This is the third principle. Then learn to prioritize. As an administrator, as an IAS or IPS officer, you will have a series of tasks every day before you. But not every task will be equally important. So you must be able to decide a priority, what is most important, second most, third most, so on and so forth, and then take things according to priority. So in your daily life itself, make this a habit to prioritize your tasks and take them in decreasing order of priorities. Then learn to say no. Successful people, friends, say more no than they say yes. We end up giving up a lot of commitments to friends, family, relatives, just because, Urdu में हम कहते हैं ना मुरावत के मारे, just because we respect them, we end up giving commitments which we ourselves are not able to then follow up. It takes strength to say no when you cannot really commit. Successful people develop that strength to say no more often than they say yes. कोई फ्रेंड आपको मूवी देखने के लिए बुला रहा है और कल आपकी टेस्ट है, तो आपकी प्रायोरिटी टेस्ट होनी चाहिए और आपके फ्रेंड को नो बोलने की ताकत आप में होनी चाहिए. Then develop systems for repetitive tasks. We all do a lot of things repetitively, either daily basis or little less frequently. तो जो भी काम आप repetitively करते हैं, कोशिश करिए कि उन सभी कामों के लिए आपका अपना एक सिस्टम हो. जब आप किसी चीज का सिस्टम डिवाइस करते हैं,
तो फिर वो काम ऑटो मोड पे चला जाता है एंड योर ब्रेन डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं सिर्फ एक मुख्तसर यहां मिसाल देके जाता हूं। मार्क ज़ुकरबर्ग का आपने नाम सुना होगा, द फाउंडर ऑफ फेसबुक। If you search him on internet, in most of his images, you will see him wearing a gray colored t-shirt, ash gray colored t-shirt. He says that he has a cabinet full of same colored t-shirts and he wears them to office on a regular basis. Why? Because he does not want to think over what he has to wear every day, what suit, what tie, what belt, so on and so forth. So he just slips on that one same colored t-shirt and walks off to office. Okay? So that is his system to avoid his brain thinking over things which are not that important. So that's an extreme example, but we can also develop systems to put our brain on auto mode in repetitive tasks. Then block the R. There's a very nice book, friends. I'll recommend that you read this book. The title of the book is Win the R, Win the Day. I'll repeat it. Win the R, Win the Day. This book talks about how every hour in your waking time has to be mapped. 5 से लेकर के 6 बजे तक exactly आप क्या टास्क करने वाले हैं, ये टास्क क्लियरली मैप होना चाहिए, and live that 1 hour at a time. So forget everything else and just focus on that 1 hour task that you have taken up. This helps you to bring in concentration and efficiency. You know, in this age of social media, where we are hooked to different screens, we are doing a lot of so-called multitasking. Emails are coming, you're getting notification from apps, people are calling you, and your quality work gets hampered because of that. But if you practice this, blocking the hour, then you will be able to overcome these kind of, you can say, attractions. 8th principle, use calendar. Google Calendar is a very good option. Everything that you plan has to be on your Google Calendar. Every single minute of your waking hour has to be there on your calendar. This ensures that you remain committed to the tasks that you are supposed to do. And it also helps you to take a review, what you had planned for the day and actually how much of it you achieved. Then 9th, turn off all the distractions. When you are doing one particular activity, then stay focused 100% on that. Keep your mobile away. If you're studying, keep your mobile away and just focus on your studying. If you're playing on the ground, forget about your studies and just enjoy the game that you are playing. Be present in that particular situation. You know, thinkers call this as mindfulness. Whatever you're doing at one particular time, your mind must be completely focused only on that. And lastly, focus on one thing at a time. Okay? This is very, very crucial for our young generation. हमारे यहाँ पर मैं काफी स्टूडेंट से अलग अलग माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी जाकर मैंने इंटरेक्शंस किए हैं और मैं देखता हूं कि टैलेंट का कोई डर्थ नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज जो लैकिंग मुझे लगती है वो है फोकस। डिस्पाइट हैविंग टैलेंट, इफ यू डोंट हैव द फोकस ऑफ वन थिंग, then your talent is not able to take you forward. Okay? Hard work alone is going to help you to achieve great success. Talent is only going to play a marginal role. Talent comes in after a certain level of hard work. If you're not able to put in focused hard work, then your talent is not going to take you any far. Okay? So these were my 10 principles that you could use in your college life, in your professional life, that can certainly help you to be more efficient, and especially with your preparation for civil services examination. Okay? I think I've marginally overshot my time also, so I'll stop my discussion from my side, and we can open up the session for questions if there are any. Thank you so much, Jawad sir. I request Asma ma'am to kindly conduct the Q&A session, as there are few questions raised in Q&A box. Thank you, Shahzad. To be frank, I think the session was so interesting. It was so easy going. Okay, very few questions have been come up. So the first question is related to the 10 principles of time management. तीसरा एक principle था like eat the frog
हाँ, तो ये क्या है? The participants are asking. Yeah. जी, What is the third? जी, ईट द फ्रॉग ये एक मेटाफर है, ठीक है। जी. मेटाफर ये इस तरीके से कि फ्रॉग जिस तरीके से इट कीप्स ऑन जंपिंग, फुदकता रहता है, वैसे ही हमारे माइंड में भी कुछ ऐसे टास्क एट द बैक ऑफ माइंड चलते रहते हैं जो कि हमको बॉदर करते रहते हैं कि वो काम जो है वो हमने अभी तक किया नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स की कोई असाइनमेंट है जो उसने सबमिट करना है एंड ही इज कीपिंग ऑन डिलेइंग दैट, सो दैट कीप्स ऑन बॉदरिंग अस एट द बैक ऑफ आवर माइंड। तो ऐसे जो टास्क हैं जो आपको कंटिन्यूअसली बॉदर कर रहे हैं, ऐसे टास्क को आपको पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उनको पहली फुर्सत में जैसे ही आपको टाइम अवेलेबल हो उनको फिनिश ऑफ कर देना चाहिए, because these kind of tasks are like a drain on our confidence, concentration and energy. Okay? So these kind of tasks need to be prioritized first and we should get them off our to-do list. That is what is meant by eat the frog. It's used like a metaphor. There's a question from Anwar Mirza. The question goes, there is a perception or allegation that those who choose languages like Urdu, Sanskrit, etc. are at advantage compared to other technical or science subjects, as the evaluators are most likely belonging to same community and they tend to have soft corner for candidates. How true is this perception? No, this perception is, I do concede that some people do think that way, but this is not true. Okay? I have seen candidates who have Urdu literature and they have had to work equally hard in terms of scoring good marks in that particular optional subject. Then I have seen candidates with Marathi literature also. They also face similar kind of challenges while dealing with that optional subject. So this is absolutely not true, since I have had first-hand experience with such candidates who are appearing in these media or going for these kind of optional subjects. So I can definitely vouch for this, that there is no such unfair advantage that is there in the exam. Generally speaking, UPSC always tries to ensure that the playing field remains level. It does not allow any particular subject, any particular background, any particular medium to have an upper hand. If by any chance, in a rare case, if it is the case, then it applies scaling also. So if some particular optional subject has scored exceptionally well that year, it is said that scaling is applied to actually have a more level playing field. So one should definitely not believe in these kind of thoughts. The next question. Are civil service selects trained on how to deal with political pressure, antisocial element threats? If so, in spite that we still find corrupt officers either by their own will or by external pressure after they join. How come these kind of mindset people get through such a prestigious exam process where bright and high standard ethic officers are part of assessment and evaluation panels? Okay. The Constitution, I would say the person who has asked this question, the Constitution has provided ample protection to those officers who want to remain committed to the values that are enshrined in the Constitution. Those who want to stay committed to uprightness, those who want to uphold their honesty and integrity, there is absolutely no fear for such officials. At max, what can politicians do? Assuming that they are hell-bent on harming you, at max they can transfer you. Beyond this, nothing can be done to an officer who is upright. अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर आपको victimize किया ही नहीं जा सकता. Yes, you have to be prepared that you might be transferred, but that is part and parcel of the job. You know it before you join the service that this service involves all India-based transfers. Okay? So you can be transferred. That is the max that can happen to you. The second part of the question is that why do such candidates still land up in the service who don't uphold such values? Yes, it does happen that there are black sheep, but black sheep are everywhere. We can't have 100% uniformity. Yes, despite the best effort of UPSC to ensure that only candidates with commitment and values enter, yet it still is a human process, and like any other human process, it will still have some people who are not that committed who enter into the service. Some might be committed initially, but in due course, if their integrity is not strong enough, then they fall prey to such pressures or such lurements or attractions. So that again is frailty, I would say, of human nature rather than fault of the process per se. But black sheep are black sheep. Exceptions prove the norm, as they say.
these should be looked at as exceptions rather than as a generalized, you can say, phenomenon. If the overall marks of two or more candidates are equal, how is relative merit between such candidates decided? Okay, in case of two candidates having the same marks, which happens very often in this exam because of the intense competitive nature, then in that case, the candidate with, the older candidate is given priority over there. So if a candidate at 26 and 27 are tied up, then in that case, the ranking, the 27th candidate gets the precedence in ranking. That's how it is decided. Okay, the next question, are we allowed to choose between IAS, IPS, IFS for ourselves? The government decides for us. Okay, it's a combination of your service preference and your rank. Okay, you are supposed to give your preference of all the services, and then based on what your rank actually allows you, you are allocated the service. Just like in case of your cap rounds in your admissions to various colleges, you give a preference, and then based on your marks, the college is allocated to you. Similarly, the same process is applicable here also. Okay, I think I'll take up the last question. There's one paper, Cardavo, especially for current affairs. Will it be good for UPSC preparation? Madam, could you please repeat the first part? There's one paper, CORDAVO. He has sent this, Cardavo, especially for current affairs. Will it be good for the UPSC preparation? Okay, I have never really heard about this paper per se, so it will be difficult for me to pass a judgment about it. But what I can certainly assure you is that the Hindu is the best resource of the known ones, and it is a standard resource that majority of the candidates use. So that's why instead of going for something new and untrusted, it would be rather advisable that you go with the Hindu or at max Indian Express. The Hindu has a little more, you can say, difficult language, and that's why Indian Express can be used as an alternative to it. But beyond these two, I personally don't see any reason why you should look for other options. There is a question from a women attendee. He has a query, any special age relaxation for women? Okay, there is actually no such special relaxation for women per se. The same kind of criteria are applicable to them. But one thing for sure is that UPSC encourages women candidates. In fact, even in the notification, in the advertisement, it is very explicitly stated by UPSC that female candidates are encouraged to appear for the exam. They don't charge you the fees also for appearing for the exam. Of course, that's nominal, but just to show the attitude of UPSC. And if a female candidate reaches the interview level, then my personal experience has been that if she has all the basic things intact, as in she has the befitting personality, then a women candidate can expect a few more marks. A little bit of leeway the UPSC panel does give to female candidates to encourage her, understanding the kind of struggle female candidates have to wage to reach that stage. But beyond that, in terms of practical relaxation for age, there is no such difference. Thank you, Jawad Bhai, for such a wonderful session. And I think you have addressed almost all the queries posed by the attendees. Thank you so much. Thank you. It was my pleasure. Shehzad Bhai, over to you. Yeah, thank you so much, Asma ma'am, and Jawad bhai. It was really an honor to have you on board with us for this session, and it was very, very insightful session. And I hope everyone who has attended this session will be definitely benefited with it. And also to all the attendees, I hope that you have taken all the insights from these sessions as well. And if in case if you want to get any further clarifications or if you want any counseling, I have posted the link in a chat box. We have a list of counselors who can help you for further counseling if you want to, but there is a limited time slot which has been there. So if you want to get in touch with them, call them only on the given time. And in case if you have any question for Jawad Sahab, you can send it to us via email, and inshallah we'll try to ask Jawad bhai if he will be able to send those answers. We'll revert it back to you. So we'll end the session for now, inshallah, with a short dua. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحتي لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone for joining this session. I just wanted to let you all know that all these sessions which we have conducted so far have already been uploaded on our website. It's the same link that was shared with you all before. It's www.anpindia.org/online CGS. So you can go to this link and you will be able to watch all the past recordings about this session which has been conducted today. Inshallah, we'll get this uploaded by tomorrow. Thank you so much. We are ending this session for now. Assalamu alaikum.